سرزمین جموں کشمیر میں بہت کم شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے زمینی سطح پر کام کر کے عوام میں پذیرائی حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر مسعود چودھری ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہیں آئندہ نسلیں ان کے کام کی وجہ سے یاد رکھیں گی۔ ڈاکٹر مسعود چودھری کی پیدائش دور دراز پہاڑی ضلع پونچھ کے گاؤں کالا بن میں 10 اپریل 1944 کو ہوئی۔ ان کے والد بابو فیض احمد جموں کشمیر کے محکمہ تعلیم میں استاد تھے۔ ڈاکٹر مسعود چودھری نے اپنی ابتدائی تعلیم مہنڈر سکول سے حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے ڈگری کالج پونچھ اور ایم کالج جموں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے جہاں انہوں نے 1966 میں LLB کی ڈگری حاصل کی اور ضلع عدالت پونچھ میں بحیثیت وکیل کام کرنے لگے۔ 1967 میں ڈاکٹر مسعود چودھری محکمہ پولیس میں بحیثیت DSP بھرتی ہوئے، جہاں سے وہ 37 سال کی شاندار خدمات کے بعد 2004 میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 2004 سے 2010 کے دوران وہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں پہلے CO نامزد ہوئے اور بعد میں وائس چانسلر کے طور پر تعینات ہوئے۔ 2010 میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی سے سبکدوش ہونے والے وہ پہلے وائس چانسلر تھے۔ ڈاکٹر مسعود چودھری نے اپنی 78 سالہ زندگی کے دوران بہت سے ادارے تعمیر کیے، جن میں گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جموں، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری اور پولیس اکیڈمی ادھمپور کی جدید کاری کا کام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جموں کا قیام ڈاکٹر مسعود چودھری نے 1992 میں عمل میں لایا۔ پچھلے 30 سال کے دوران اس ادارے نے گجروں میں تعلیمی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی بیداری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پوری دنیا میں آباد گجر قبیلے کے لوگ اس ادارے کو اپنا ثقافتی مرکز مانتے ہیں اور علمی، ادبی اور سماجی کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہوئے اسی ادارے کو چنتے ہیں۔ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے قیام کے 30 سال ہوتے ہوتے اس کے زیر اثر کئی دوسرے ادارے بھی وجود میں آئے، جس میں گوجری ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس میں گوجری کتابوں کی اشاعت و ترویج کا کام کیا جا رہا ہے، قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مادر مہربان ریسرچ لائبریری ایک ایسا ادارہ ہے جس میں گجر قوم پر لکھی گئی تمام کتابیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی مختلف زبانوں کی کتابیں بھی اس میں دستیاب ہیں، جہاں پورے بھارت سے آنے والے ریسرچ اسکالر استفادہ کرتے ہیں۔ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے حال ہی میں شروع کیا گیا مسعود چودھری میوزیم ان دنوں عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اس میوزیم میں گجروں کی قدیم وراثت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی، پہناوے، زیورات اور دوسری اشیاء کی نمائش کی جا رہی ہے۔ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اثر نئے کانفرنس ہال، سیمینار ہال بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں خاص ہیں چودھری محمد ابراہیم میموریل کانفرنس ہال، سروری کسانہ میموریل کانفرنس ہال،
गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की मरकजी इमारत में साहिर लुधियानवी कल्चरल हॉल खास तौर पर काबिल जिक्र है। ये वो इमारत है जहां बड़ी बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की मरकजी इमारत का इफ्तिताह यूपीए की सदर मोहतरमा सोनिया गांधी ने 2010 में किया था। गुलाम नबी आजाद जी, सफीउद्दीन सोर जी, मसूद चौधरी जी। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने तालीमी मैदान में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS और दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानों में शामिल होने वाले बच्चों के लिए बाबू फैज अहमद स्टडी सेंटर का क़याम भी अमल में लाया है, जहां सैकड़ों बच्चे तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कायम करदा ब्रिगेडियर खुदा बख्श पब्लिक स्कूल जम्मू शहर के अहम तरीन स्कूलों में से एक है। KB पब्लिक स्कूल के नाम से जाने जाने वाले इस स्कूल में हजारों बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनमें ज्यादा की तादाद गुज्जर बकरवाल और दूसरे कबाइल से है। यहाँ पसमानदा तबका जात के बच्चों के लिए खास रायतें रखी गई हैं। KB पब्लिक स्कूल जदीद तर्ज पर काम करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, जिसमें हर तरह की सहूलियात बहाम रखी गई हैं। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जा रही है। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चलने वाले हॉस्टल्स में मौलाना आज़ाद गर्ल्स हॉस्टल खास तौर पर काबिल जिक्र है, जिसमें दूर दराज की ट्राइबल लड़कियां रहाइश रखती हैं ताकि वो अपनी तालीम पूरी कर सकें। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की इसकी ग्रोथ है, जो एक कांस्टेंट प्रोसेस है। इसकी यो तुमने 89 में शुरू कियो? यो असल में 1991 तो यो शुरू हुआ, इसलिए 25 साल हो गया। लेकिन यो है कि भाई एक इसकी ग्रोथ इसको एक कांस्टेंट प्रोसेस है ये, और उसमें अगर हम सारा मसलसल अगर तवज्जो नहीं देता तो फिर इस जिस कौम वास्ते हम कम करना लगा हुआ, और जिन्होंने शायद अजम इसको अंदाज़ा नहीं है कि तालीम को मकसद क्या है और ये कल्चर को मकसद क्या है और ये म्यूज़ियम का मकसद है। डॉक्टर मसूद चौधरी की मेहनत से कायम हुआ एक और इदारा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस इदारे का क़याम 2002 में हुआ, जबकि ये 2010 में तकमील को पहुंचा। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को उत बढ़ना एक मोइज़ो है जी। इस वास्ते मोइज़ो है कि साहब उत आबादी नहीं, उत पानी नहीं, उत बिजली नहीं, और उत गैर लोकां वो रस्तो है जी। और सब तो बड़ी गल यह है कि पैसों कोई नहीं। हमने यूनिवर्सिटी बनाई और बगैर पैसा तो बनाई, और फिर शॉर्टेस्ट पीरियड में बनाई, और जिस वेला वह कंपटीशन में आई तो ये पता लगा था कि यह सब तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, या जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी का मुकाबला में। मसूद चौधरी साहब ने अपनी काविशों से इस यूनिवर्सिटी को भारत की अहम यूनिवर्सिटी बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। ये इदारा आज भी जम्मू कश्मीर के अहम तालीमी इदारों में से एक है। डॉक्टर मसूद चौधरी ने अपनी तमाम तर जिंदगी मुल्क को कौम के लिए सर्फ की। अपनी आम जिंदगी में वो बहुत मेहनतकश, जुर्रतमंद और ज़हीन शख्स थे। वो जिस काम में भी जुट जाते उसे पूरा किए बगैर दम नहीं लेते थे। डॉक्टर मसूद चौधरी के अंदर गुज्जर कौम की मोहब्बत और उनकी सकाफत को महफूज करने की ख्वाहिश
अव्वल दिन से ही मौजूद थी और वो इस राह पे गामजन थे। अपनी 78 साला जिंदगी के दौरान उन्होंने बहुत से इल्मी और अदबी मार्के भी सर किए। जम्मू में जश्न फैज़ का इनेकाद, बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का क़याम, गुज्जर तारीख पर लिखी गई किताबों की इशाअत उनके दीगर कारनामों में शामिल हैं। 2012 में डॉक्टर मसूद चौधरी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री से नवाजा। डॉक्टर मसूद चौधरी गुज्जर कबीले में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत थे। उन्हें अपने कबीले ने बहुत सी मोहब्बतों से नवाजा था। वो जहां भी जाते गुज्जर कबीले के लोग हजारों की तादाद में जमा होकर उनका इस्तकबाल करते थे। 16 दिसंबर 2022 को डॉक्टर मसूद चौधरी हमसे रुखसत हो गए। उनकी आखिरी आरामगाह गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के नज़दीकी कब्रिस्तान में है, मगर वो आज भी अपने कामों की वजह से हम में मौजूद हैं। आने वाला अहद डॉक्टर मसूद चौधरी को उनके यादगार कारनामों की वजह से याद रखेगा। इश्क ना पुछदा है ज़ाता रूबरू सजन दे होके कर लईए दो बातां ओ बस कर आलूमा छड़ दे खैड़ा लम्मी छोना पानी टुर गए नबी मुहम्मद वर्गे मन तकदीर रुबानी ते ले ओ यार हवाले रब दे ले ओ यार ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनों दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलोगे।